Good morning, everyone. Let's start the different steps that we have discussed in the previous slides, that we have to follow the different steps for growing crop. And the very first step is preparation of soil. That means हमें जिस लैंड में हम ये काम कर रहे हैं उस लैंड की सॉइल को हमें प्रिपेयर करना है जिससे कि हमारी क्रॉप उस पर बहुत अच्छे से ग्रो करे. So as you can see in the picture, the basically the land that contain very tough layers. So first we have to loosening and turning of the soil. It may be done with the help of a tractor. It may be done with the help of this oxen. So आपने जैसे देखा होगा कि बैल के पीछे एक जो है ये एक ऐसा इम्प्लीमेंट लगा होता है जिससे कि वो पूरी की पूरी सॉइल को टर्न लूज और टर्न कर देता है, मीन्स पूरी सॉइल को खोद देता है. तो बड़े बड़े मिट्टी के डले उस क्रॉप में आ जाते हैं, उस लैंड पे आ जाते हैं, और फिर आपको क्या करना होता है, उन बड़े बड़े डलों को अच्छे से पीसना पड़ता है और फिर पूरी सॉइल को लेवल में लेके आना पड़ता है, एक लेवल लेके आना पड़ता है. So this practice of loosening and turning of soil is known as plowing or tilling, and it can be done by using a wooden or iron plow. ये plow है. This one is known as ये आपको दिखाई दे रहा है. It may be wooden, it may be of iron, which is either pulled by oxen or by a tractor. ये tractor से भी हो सकता है. And after that, as I told you, the whole field is going to be leveled. उसको एक level में लेके आया जाता है, नहीं तो कहीं से खुदी हुई ज़्यादा होगी, कहीं से कम होगी, तो proper एक level में लेके आया जाता है. It is very important for the growing of seed. So this is the first step of the preparation of soil. Now why this one is important? You can see in this picture. This one is you can say plowing is done with the help of a tractor. देखिए ट्रैक्टर से पीछे पूरी की पूरी सॉइल को अच्छे से उसकी जो सॉइल है फील्ड को, उसकी सॉइल को अच्छे से लूज और उसको टर्न किया जा रहा है. Then after that, agriculture implement which can be used in the tilling, you can see in this picture, hoe and the cultivator. Cultivator ये आपको दिखाई दे रहा है, this one. Plowing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. देखिए कितने सारे एरिया में एक ही बार में पूरी की पूरी लूजनिंग टर्निंग हो जाएगी. So it is very good. These all are modern technique. And what are the advantages of plowing of soil? Very first, it help in turning the soil, which help bringing the nutrients from the soil to the top. जो nutrient soil में नीचे थे, जब आपने पूरी soil को turn किया तो वो nutrient भी ऊपर आ जाते हैं. Second, it helps in loosening the soil, which helps the roots to penetrate deep in the soil. Root has to go deep into the soil, but if the soil is very much tight, very much tough, then the roots will has to face a lot of difficulty to go inside that. But if the soil is very much loose, then the roots can easily go inside the soil. It also help in proper mixing of manure in the soil. जैसे हम खाद डालते हैं तो खाद सॉइल में ऐसे में प्रॉपर मिक्स हो जाती है अगर वो लूज है. इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग अ गुड क्लीन एरिया फॉर प्लांटिंग सीड्स. ऑब्वियसली एक बढ़िया एक अच्छा सा एरिया बन जाता है. प्लोइंग improves the water retaining capacity. Not only water, it increase water and air holding capacity of the soil. So these are the advantages. Second step. Second step is known as sowing of seed. What happened? Different methods can be used. The seeds can be sown with the help of hand. कि देखिए ये फार्मर खड़ा हुआ है, इसने अपने कंटेनर में सीड लिए और ये हाथ से उनको फेंक देता है कहीं भी. This method is known as broadcasting. Second method, this one is known as seed drill. It is a kind of machine. एक funnel के type की machine होती है. You can see here, this one is the funnel in which seeds are present. And this funnel contain a long tube. जैसा आपने सिंपल तेल डालने वाला जो कीप होता है, फनल जो होता है, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. तो एक सीड सॉइल में अच्छे से डेप्थ में लेके जाया जा सकता है. तो ये ट्रैक्टर चलता जाएगा और
उस सीड को नीचे की साइड सॉइल के अंदर प्लेस करता जाएगा. सो दिस इज नोन एज सीड ड्रिल. सो इट इज अ काइंड ऑफ मशीन. एंड सीड्स आर सोन इन स्मॉल फील्ड कॉल्ड नर्सरी बाय हैंड. अगर आप छोटी सी नर्सरी, जैसे आजकल हम लोगों के घर में किचन गार्डन होता है, तो ये छोटी सी नर्सरी में हम ये सीड को ऐसे अपने हाथ से प्लांट कर सकते हैं. दीज आर द डिफरेंट मेथड. सो फर्स्ट स्टेप था आपने सॉइल प्रिपेयर की. सेकंड स्टेप आपका है कि आपने उसमें सोइंग कर दी, मीन्स आपने सीड जमीन में डाल दिया. सोइंग करने से पहले द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग of or putting seeds into the ground is called sowing. आपको अच्छी क्वालिटी के सीड चाहिए. देन हाउ डू यू नो दैट द क्वालिटी ऑफ सीड इज वेरी गुड? आप सीड को लेके आइए, उनको पानी में भिगा के रख दीजिए. जो सीड्स ऊपर तैर जाएंगे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे. इसका मतलब उनकी डेंसिटी कम है, तो वो अच्छी क्वालिटी के सीड नहीं माने जाते. तो आप पहले अच्छी क्वालिटी के सीड को सेलेक्ट कीजिए और फिर उनको आपको सॉइल के अंदर डालना है. So different methods can be used for the sowing of seeds. Third one, soil replenishment means आपको soil को replenish का मतलब होता है कि आपको soil को लगातार nutrient से rich करते रहना है. So that is known as soil replenishment. Different methods can be used to do it, like field fallow. Field fallow में क्या होता है? आपको land को थोड़े टाइम के लिए uncultivated छोड़ना होगा. अनकल्टिवेटेड छोड़ने से क्या फायदा हुआ कि जब प्लांट इसके ऊपर उगते हैं तो वो प्लांट सॉइल में से न्यूट्रिएंट लेते हैं. पर अगर आपने एक बार सॉइल के ऊपर प्लांट को ग्रो कराया तो उन्होंने न्यूट्रिएंट निकाल लिए. अब दोबारा से उन न्यूट्रिएंट को एयर से, वाटर से या डिफरेंट एनिमल से ऐड होने में टाइम लगेगा. तो जब आप थोड़े टाइम के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं तो न्यूट्रिएंट सिर्फ इसमें ऐड होते हैं, इसमें से लिए नहीं जाते, क्योंकि आपने प्लांट तो ग्रो कराया नहीं है. तो दिस इज नोन एज फील्ड फैलो. द एग्रीकल्चर लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 or 2 seasons. Nutrients gets replenished. Another is known as crop rotation. Crop rotation में क्या है? क्रॉप रोटेशन में हम एक ही टाइप की क्रॉप को लगातार फील्ड पे ना उगाएं. हमें डिफरेंट क्रॉप को उगाना चाहिए. उससे क्या फायदा मिला? उससे ये फायदा होता है कि एक क्रॉप की डिमांड, फॉर एग्जाम्पल उसकी डिमांड नाइट्रोजन की है, तो उसने सॉइल में से सारी नाइट्रोजन ले ली. अब हम जो सेकंड क्रॉप उगाएं वो क्रॉप उगानी चाहिए जिसकी डिमांड नाइट्रोजन ना हो के फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस हो. तो अब लैंड में से वो क्या लेगी? सॉइल में से क्या लेगी? फॉस्फोरस लेगी. और हर क्रॉप रोटेशन में बीच में एक लेग्यूमिनस क्रॉप जरूर उगानी चाहिए. लेग्यूमिनस क्रॉप एज यू हैव डिस्कस्ड इन योर 7th क्लास ऑल्सो, कि लेग्यूमिनस क्रॉप में जो बैक्टीरिया रहता है राइजोबियम, वो नाइट्रोजन रिच बनाता है आपकी सॉइल को. तो फॉर एग्जाम्पल आपने डिफरेंट क्रॉप को सेलेक्ट कर लिया कि भाई पहले मुझे एक क्रॉप उगानी है, फिर दूसरी उगानी है, और इसी बीच में एक लेग्यूमिनस क्रॉप भी उगानी है. तो जब आप डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कराते हो तो ये भी आपकी सॉइल को रेप्लेनिश करेगी. आपने पहले नाइट्रोजन कर लिया सॉइल में से आपके प्लांट ने. सेकंड आपने जो क्रॉप उगाई वो फॉस्फोरस को यूज करेगी, तो वो तो क्योंकि फॉस्फोरस को यूज कर रही है, बाय द टाइम आपकी सॉइल में नाइट्रोजन ऐड हो जाता है. और आपने क्योंकि लेग्यूमिनस क्रॉप ली है तो लेग्यूमिनस क्रॉप आपकी सॉइल में नाइट्रोजन के कंटेंट को ऐड करेगी, क्योंकि वो बैक्टीरिया हेल्प करता है नाइट्रोजन ऐड करने में. The lost nutrient can be easily replenished in the soil by growing one leguminous crop between 2 successive cereal crop. 2 लगातार क्रॉप के बीच में एक लेग्यूमिनस क्रॉप उगा देनी चाहिए जिससे न्यूट्रिएंट रिच बनी रहे आपकी सॉइल. Now these are the different methods of cropping. Basically it is not in your course. In 9th class we will discuss about it. What are the advantages? Means अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि हमने अपनी फील्ड को न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए हमें उसमें बाहर से न्यूट्रिएंट्स ऐड भी करने हैं. तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इस पर्सन के पास ये जो कंटेनर है इसमें गोबर भरा हुआ है, और एक्चुअल में ये गोबर नहीं है, ये खाद तैयार की गई है. तो वो उस खाद को यहाँ स्प्रेड कर रहा है जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस सॉइल के अंदर आ जाएं. और यहाँ ये केमिकल्स को डाल रहे हैं. These are fertilizer. So different methods can be used. Manure and fertilizer both help to increase the nutrient into the soil.
मैन्योर फर्टिलाइजर के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। बेसिकली ये आपकी इस स्लाइड में बहुत ज्यादा क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर, but you can, it is your homework that you have to find out the advantages of manure over fertilizer and disadvantages of manure over fertilizer। ठीक है, मैं इसको रीड भी नहीं करूंगी क्योंकि अदरवाइज मैं रीड करूंगी तो आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आपका तो ये होमवर्क है, आपको ये फाइंड आउट करना है मैन्योर के एडवांटेजेस, फर्टिलाइजर के डिसएडवांटेजेस, और मैन्योर के डिसएडवांटेजेस, फर्टिलाइजर के एडवांटेजेस। नेक्स्ट स्टेप इज इरिगेशन। हमने सॉइल प्रिपेयर कर ली, हमने उसमें सीड को की सोइंग कर दी, हमने उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए, बट ये न्यूट्रिएंट प्लांट्स को तभी मिलेंगे जब ये अच्छे से वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो अब आपको इनको वाटर में डिसॉल्व करना है। सो वी हैव टू गिव वाटर टू द फील्ड, एंड वाटरिंग टू द फील्ड, दैट इज नोन एज इरिगेशन। सो इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स आपके हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, लाइक स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन, ये मॉडर्न मेथड में आते हैं। नहीं तो छोटी सी कैनाल बना के आप वाटर अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप कुएं से पानी ले सकते हो। कुछ ये डिफरेंट मेथड्स हैं इरिगेशन के, मॉडर्न मेथड भी हैं और ये ट्रेडिशनल मेथड हैं। तो आप किसी भी डिफरेंट मेथड से हम अपने फील्ड के अंदर वाटर अप्लाई कर सकते हैं। अनदर स्टेप इज क्रॉप प्रोटेक्शन। अब हमने देखिए क्रॉप तो लगा ली, क्रॉप तो हो गई, बट क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्शन हमारी दो लेवल पे होती है, एक तो जब हमारी क्रॉप फील्ड में खड़ी होगी, और एक प्रोटेक्शन होती है जब हमारी क्रॉप को हम सीड को घर में ले आते हैं। सो दिस वन प्रोटेक्शन इज ऑन द फील्ड। द वेरी फर्स्ट वी हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वीड्स। अब ये वीड्स क्या हैं? वीड्स आर ऑल्सो प्लांट्स, बट दीज आर अनवांटेड प्लांट। ये हम चाहते नहीं है कि हमारी फील्ड में उगे, तो लेकिन फिर भी ये उग जाते हैं, तो ये प्लांट बोले जाते हैं अनवांटेड प्लांट। लेकिन अनवांटेड प्लांट है तो प्लांट, पर क्योंकि ये हमारी मेन क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लेते हैं, तो हमारे मेन क्रॉप को तो मिलेंगे नहीं वो न्यूट्रिएंट्स, सारे किसने ले लिए? वीड्स ने ले लिए। तो वीड्स की वजह से हमारे मेन क्रॉप न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है उसमें, तो इसलिए हमें इनको रिमूव कर देना चाहिए। अगर आपकी फील्ड स्मॉल है तो आप इनको मैनुअली रिमूव कर सकते हो हाथ से, जैसे कि ये पर्सन यहाँ कर रहा है। या फिर जब हम सॉइल प्रिपेयर करते हैं सीड सोइंग के लिए, तो उस समय भी अगर कुछ अनवांटेड प्लांट आपकी फील्ड पे हैं तो वो उतर जाएंगे, वहां से हट जाएंगे। या फिर आपको उनके लिए एक वीडीसाइड, वीडीसाइड होता है वीड्स को मारने वाला केमिकल। So weedicide is a chemical which kill the weeds, या which do not allow the growth of the weeds. So आप उस chemical को spread कर सकते हैं। There are different methods for that. Then removal the weeds is known as weeding. As you can see कि weeding different time पे हम कर सकते हैं, और weeding हमारे लिए important है क्योंकि weeds हमारे usual plant की nutrient को यूज कर लेते हैं, और हमारे जो प्लांट है, जो वांटेड प्लांट है जिनको हमने उगाया है, उन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट नहीं जाने देते, उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, कीड़े आ जाते हैं, तो उनके लिए स्केयर क्रो हम लगा सकते हैं। देखिए ये लगा रखे हैं स्केयर क्रो, या फिर आप पेस्टिसाइड को स्प्रेड कर सकते हो। डिफरेंट मेथड्स आर देयर। कीड़ा लग जाता है जो प्लांट में, बेसिकली दैट इज पेस्ट। ओके, स्केयर क्रो जो फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि जो क्रो, या कई लोग ऐसा करते हैं कि वो ड्रम बीटिंग भी करवाते हैं या केमिकल्स को स्प्रे करते हैं। अनदर स्टेप इज हार्वेस्टिंग। अब हमें हार्वेस्ट करना है, मतलब हमारी क्रॉप प्रोटेक्ट भी हो चुकी है, अब हमें उसकी कटिंग करनी है। कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। और ये हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। सीकल से, ये देखिए इस आदमी के हाथ में ये सीकल है, इसको खुरपी बोलते हैं, तो खुरपी से कट किया जाता है। या फिर एक मशीन होती है जिसको हम कंबाइन मशीन बोलते हैं, जो कट भी कर रही है और साथ ही साथ जो सीड है और जो वीट चाफ है उन दोनों को सेपरेट भी करती है। और ये विनोइंग है।
विनोइंग में आप देखिए यहाँ ऊंचाई से इसको सीड को नीचे डाला जाता है, तो सीड क्योंकि हैवी होता है वो तो गिरता है नीचे आके अलग, और जो वीट चाफ होता है वो हल्का होता है तो वो डिफरेंट डिस्टेंस पे आके गिरता है। अधिकतर हमने घर में ये देखा है कि जब चावल बनाते हैं तो चावल को थाली में लेके ऐसे ऊपर उछाला जाता है, तो वो जितना भी लाइट मटेरियल है वो अलग हो जाता है। दैट इज नोन एज विनोइंग। सो देर आर डिफरेंट मेथड। हार्वेस्टिंग हमने कट कर लिया, हम कटिंग के लिए कंबाइन मशीन भी यूज कर सकते हैं। और थ्रेशिंग, थ्रेशिंग मतलब है इट कैन बी डन मैनुअली और बाय अ मशीन कॉल्ड थ्रेशर। तो कई बार तो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों इसी में हो गई, इसीलिए इसका नाम है कंबाइन, जिसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग हो जाती है। अदरवाइज कुछ लोग हार्वेस्टिंग यहाँ की और थ्रेशिंग यहाँ की, और फिर उसको विनोइंग, विनोइंग करके मीन्स आफ्टर थ्रेशिंग। थ्रेशिंग बेसिकली क्या है कि आपको वीट चाफ में से सीड को अलग करना है। अगर आप देखते हो तो जो गेहूं लगता है वो गेहूं की बालियां होती हैं, तो उसको हल्का सा प्रेशराइज करके उसमें से गेहूं को अलग कर लिया जाता है। लेकिन अभी वो गेहूं और वो जो उसका जो वीट चाफ, जो चाफ है मतलब कि वो जो तुनके होते हैं उसके अंदर, वो सब मिक्स हैं। अभी हमें उनको हटाना है, अलग करना है। तो अलग करना, सीड को अलग करना, दैट इज थ्रेशिंग। लेकिन विनोइंग की हेल्प से हम उनको गैदर भी सेपरेट कर देते हैं। देन स्टोरेज। अब हमारे घर की अगर हम बात करें तो हमारे घर में तो बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं या फिर हमारे स्टोर ड्रम होते हैं, हम उसमें उसमें स्टोर कर लेते हैं। बट एक लार्ज लेवल पे अगर करना है तो ये सिलोज हैं, दीज आर नोन एज सिलोज। तो सिलोज में हम इनको अपने सीड को कलेक्ट स्टोर कर लेते हैं, नॉट कलेक्ट, स्टोर कर दिया जाता है। So harvested food grains after contain more moisture, often contain more moisture. Hence these grains are sun dried। पहले उनको, क्योंकि अगर मॉइस्चर रह गया तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ा था दैट मॉइस्चर की वजह से फंगस लगने का डर रहता है। सो फर्स्ट वी हैव टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम इट। It will be sun dried before storing. This prevents the growth of microbe, and the large scale storing is done in granaries or silos to protect grain from rats, insects। फ्रूट वेजिटेबल को अगर आपको स्टोर करना है तो आप कोल्ड स्टोरेज या डीप फ्रीजर में कर सकते हैं। I think it is enough for you. So if you have any problem you can go through the book if you have, or otherwise if there is any problem you can ask it to me. Okay, have a nice day, goodbye.